Sapna Sarfare, the deputy editor of Society magazine, and the man of the evergreen hero #1, Govinda. Showing by Mr. Prahlad Nilani, the former chairman of Censor Board, and actress Mishka Chaurasia. Please give them a big round of applause. To speak about Govinda's career as an actor would be disrespectful, as most of us have grown up on his movies and loved them. The same goes for Prahlad Nilani, whose career has been full of hit films. So without wasting any more time, we'll straight away head to the Q&A session. I'd like to ask you, sir. So you started your career with Mr. Nilani, and today you're working with him again. So how it feels to come such a long way, and is there a difference working then and now? Well, you can make out that the presenter is different, maker is different to producer, and he's been maker. He has introduced more than a dozen stars, I feel, to the film industry. They have done very well, and I am one among them, and I feel very proud to get joined once again with Prahlad ji. If you do films, it's not so easy to do the same, to come with the same producer after 29-30 years. When he said me that he's starting the film, I thought that he might make with some another youngster or something like that. But what was shocking, that there are 3 young girls against as a heroine in the and I feel that see what is the difference that with other producers and Prahlad ji. In last 29-30 years, this is first time somebody has brought me to Nari Hiraji, which has been like it's like a dream when I'm sitting with Sapna ji. So nice to see you all. I feel that he has always given hits with me, like 3 hits, and for 20 years we have not worked for some reason. And now we are coming with Rangila Raja. I'm hoping the best, not only as a film star, but the way he has presented me. His presentation is mind-blowing, I feel. It's outstanding. And that's what he has done once again. And I feel that it is so nice. Mr. Nilani, what do you have to say your equation with Mr. Govinda over the years? I think Govinda is one and only one. जो है जिसके साथ काम करने में you enjoy working with him, जो क्योंकि इसने जो है जो रिस्पेक्ट जो प्यार और जो हमेशा जो है मुझे दिया है from the first film, he has not changed with me on the set, though we have changed in real life, which we were not sharing as a friend or this thing. He has respected me. He calls me always Bapu. And this time we are friends. That's the only difference it has come in after 25 years. Yeah. So I am glad to working with him again in very first movie Jhootha Ilzam, because actually title was Ilzam, but I was not getting it from GPCP. Finally, I have snatched away from him. I have gave one page in the screen this thing paper, newspaper, and I spent 10,000. And like a Sindhi, I am also Sindhi, Narinji also is Sindhi. So he said, why you not offered me initially? Now forcefully I have to give you the title. But in between I kept Jhootha Ilzam because I was not getting Ilzam. So he loves that Jhootha Ilzam more than a Ilzam. I said that Ilzam will not do well with me. So it was a Jhootha Ilzam. So finally we have come, and I marked in that time whatever I was asking him to do, and he was giving them more than that. Not only the new type of kind of dances, it was I'm a street dancer. I think in first time break dance on the screen, which has
really kind of you can match with the Michael Jackson that time, because Michael Jackson was only every kid has been inspired from him, and he has been inspired on the road, and he has shown me the moonwalk that time. So I said I will change the entire screenplay, and I have changed it because originally it was a different screenplay. Because of I watched his dancing movements and other things, way he was doing it, I have changed completely screenplay and backdrop of the film. He was actually ताला तोड़, ताला चाबी बनाने वाला था, बट जो फिल्म में कैरेक्टर था जो मैंने कम्प्लीटली एज अ डांसर उसको पेश करके ये किया बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड हिज टैलेंट विच पीपल हैव नॉट सीन बिफोर. सो दैट वाज इनिशियली our beginning has started from Ilzam, Jhota Ilzam, and I think he has proved himself as an actor. With that time, main hero was Shatrughan Sinha and Shashi Kapoor and many others. But way he has shined from that movie, I think still we are working on the same platform because of the Ilzam. His behavior and the acting talent has shown in the best way. So that was fabulous. And now I'd like to open the floor to the media to ask questions. Hands up, please. You're absolutely so trim, Govindaji. How do you manage to, keep yourself this trim over, like 30 years in the industry? There is no hard work behind. It's all my wife. She doesn't allow me to eat. Pran Saab used to do thumb practice, खाना आया तो उसको अवे कर देते थे, तो खाना आया तो अवे कर दो. वो मेरी वाइफ करती है, वो खाना अवे कर देती है, कहती है you cannot eat, if you will eat nobody will eat. So thanks to her, she's looked after me well. If a guy is looking nice, that means he is blessed by his mother, and his wife is she is a much nice person comparatively. Yeah. So we've heard that Rangila Raja is loosely based on Vijay Mallya. Is it true? We have, as he said to us, that Govinda, I want to present you with a high style, high lifestyle, and very graceful. And it is better to copy Vijay Mallya because he looks very graceful personally. There is no political discussion going on here. And I like the idea. I said, yeah, copying somebody who really looks nice is good. So inspired by him. It is inspired. There is nothing to do directly with him. And I never do a film like that. We never do it. We don't want to take a publicity with that. Prahlad, why did you choose Govinda for this film as compared to any other actor? First of all, he's my own star, number one. Number two, he's the number one star. Number three, what the character I wanted in this picture. There are two characters, two brothers. One is a Swami Baba, like a Baba Ramdev, who teaches the yoga and create the awareness of the yoga. And other is a tycoon, businessman, which have our own colorful life. So I think Govinda in real life is not colorful. So I think he can present on the screen as a colorful will be a new thing. Because he's a goody boy, which has been image of goody boy, always can be, because all his desires. I thought my dress will change the top, but nothing has happened. It's always inside. So I wanted to show the public, he also can play like a colorful man, and he has done a lot of hard work. I think in three movies, Ilzam, Jhota Ilzam, Shola, Shabnam and Aankhein, that was an easy film for him to do the thing. But way he has worked very hard for these two characters, Yogi and Bhogi. Bhogi is like a character, colorful is like a Vijay Mallya, and Yogi is like a Baba Ramdev. So I think two characters he has simultaneously played, like a younger brother and elder brother. It's not a twins or neither is this thing. And look-wise, performance-wise, respect-wise, means it's a two different character. You will not find in the movie there is this one person is playing the
same kind of role. But you will feel as a, for the costume, for the character, for the look wise, is a completely entirely different, and always they are together when they are in the house. So I think it's a novelty which is only performer who knows the job, who can work very hard. Because Govinda with me, he has never asked me what I am making. He has full faith in me. I think he has trusted me from the first movie, and still is continue. I don't know after this movie, but I think. I give a very different, actually dangerous है थोड़ा सा आंसर. Sorry, बुरा नहीं मानिए please. When people why he choose me, मैं कहा ये जिससे छोटा सा तो मैं तब से मुझे चूसते आ रहे हैं. And I feel जो वर्क मैं इनके साथ कर सकता हूँ फिल्मों में, ऐसा हो गया है कि फिल्में बहुत की हैं, पर जो प्रहलाद जी के साथ की है वो यादगार हो गई. मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये फिल्म जो है यादगार हो जाएगी, लोग भूलेंगे नहीं इसे. बहुत ही अलग, डिफरेंट, एंड अभी मुँह मियाँ मिठू नहीं हो तो अच्छा ही है. पब्लिक देखने के बाद कहे तो वो अच्छा रहेगा. ओके सर, इसी के साथ में 11 तारीख आने वाली है, फाइनली डेट फाइनल हो चुकी है, रिलीज हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मूवी से एंड क्या चल रहा है आपके दिल में फिल्म को लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके लोग आएंगे और कहेंगे कि लोग बहुत ही गोविंदा तारीफ़ कर रही है. जैसे आंखें लगी, शोला शबनम लगी, इल्ज़ाम लगी, ज़रा भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फिल्म जो है हिस्ट्री में जाएंगी या ऐसी हिट हो जाएंगी, यादगार हो जाएगी. लग गई तो फिल्म पता लगा कि यहाँ गोविंदा स्टार आया है, फिर ये लगा कि आंखें से फिर सुपरस्टारडम मिला. और ये फिल्म जो है मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं यही कह सकता हूँ, एज एन एक्टर कि जो मैंने आज तक परफॉर्म किया, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एज एन एक्टर. सर, इस फिल्म के साथ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी आ रही है और दोनों से ही कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है 11 जनवरी को क्या फैसला होगा जनता का? मेरा तो कभी कंपटीशन में विश्वास ही नहीं रहा. मैं कभी देखा ही नहीं राइट लेफ्ट. मेरे पास पहले तो टाइम नहीं होता था, और जिस वक्त टाइम हुआ तो ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि मैं किसी की तरफ देखूं. और क्योंकि मेरी पिक्चरों का जो तौर तरीके और उनके स्टाइल, देयर आर गोविंदा टाइप सिनेमा, तो उस टाइप का डिफरेंट फिल्म आ जाए, देन आई कैन से कि या वो दोनों एंटरटेनिंग है फिल्में, तो ऐसा हो सकता है. पर मुझे नहीं लगता है. दैट्स अ डिफरेंट टाइप. जिस वक्त इल्ज़ाम लगी थी तब उसके साथ में आई थिंक स्वर्ग से सुंदर लगी थी, विच वॉज अ फैमिली ड्रामा. देन अंकुश लगी थी, दैट वाज अ एक्शन फिल्म. तीनों फिल्म सुपरहिट हो गई थी. तो ऐसा मुझे, मेरी उस तरफ सोच नहीं है. गुंदा सर, आपसे और फरहाद सर, आप दोनों से जानना चाहूँगी, फिल्म में कुछ 4 से 5 कट लगाए गए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से, कोर्ट में भी ये मामला गया. वहीं दूसरी फिल्म आ रही है ठाकरे, जो जनवरी में ही रिलीज है, उसमें भी कुछ कट्स की बात की गई, लेकिन उन्होंने सेंसर बोर्ड की कोई भी बात नहीं मानी और कोई भी कट नहीं लगाए गए. इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और कैपेसिटी है. मैं बाला साहब ठाकरे की फैमिली से मैं अपनी तुलना तो नहीं करूँगा, ना मेरा पॉलिटिकल इतना अप्रोच है जो मैं बोलूँ कि बिना कट के फाइट करूँ. जो ऑन पेपर है, CBFC ने मुझे जो कट दिए, वो जो अनजस्टिफाइड कट थे, उसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने कह दिया, और पब्लिक डोमेन में मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो वो रिपीट नहीं करूँगा. तो जो कट्स मुझे दिए थे एज अ फिल्म मेकर, जो मैंने कभी ऐसी फिल्में बनाई नहीं जिसमें मुझे कट्स मिले, नंबर 1. तब नंबर 2, जो CBFC के चेयरपर्सन होने के नाते जहाँ जो मेरे सामने फिल्में आई, या जो कट्स होने चाहिए, या गाइडलाइन क्या अलाउ करती है या नहीं करती, तो वो सारे मेरे कट्स थे ही नहीं, अनजस्टिफाइड थे. इसलिए मेरे, क्योंकि FCAT जो है, ट्रिब्यूनल जो है, उस टाइम दिवाली की छुट्टी थी और चेयरपर्सन उस टाइम नहीं थे, तो रिवाइजिंग कमेटी में नहीं जा सकता था. तो फाइनली आई गॉन टू द कोर्ट टू रिलीज़ द पिक्चर ऑन द दिवाली डे. बट मेरे नसीब में नहीं थी, क्योंकि कोर्ट ने मतलब जो है, क्योंकि CBFC ने जितना हार्डवर्क जो है मेरी पिक्चर में कट्स लगाने में लगाए, उतने शायद पहले से लगती तो कभी आपको वेबसाइट पे भी जरूरत नहीं, खराब पिक्चरें नहीं मिलती, जो आज सब कंप्लेन कर रहे हैं कि अनसेंसर उसमें आ रही है. तो ये टोटल हार्डवर्क मुझ पे फोकस था, पिक्चर पे नहीं था. पिक्चर पे ऐसी कोई कट्स थे ही नहीं जो होने चाहिए थे. फाइनली आई गॉट द जस्टिस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, और जहाँ पे मुझे कट्स नहीं मिले गए, 2 कट्स मुझे दिए गए.
एक वर्बल कट दिया गया, जिसमें मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, जो मैंने एक तो वर्बल डब कर दिया और दूसरा मैंने काट ही दिया। ओके गोविंदा जी, आपसे पूछना चाहिए बायोलॉजिकल फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, कभी करना चाहेंगे आप? यू मीन दिस जो बायोपिक। बायोपिक? मुझे कह रहे थे, मैं कहा कि मे बी आफ्टर 59, अभी नहीं। अभी तो मैं नहीं सोच सकता था वैसा सब हो रहा है। आई एम वर्किंग विद ऑल द न्यू कमर्स और अच्छा लग रहा है। और अब हम ये कह दें कि बायोपिक हो गई तो लोगों का देखने का आपकी तरफ जो है तौर तरीका है डिफरेंट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म में वो नहीं वो समेट पाएंगे गोविंदा की फिल्म, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इफ़ दे विल गो थ्रू द चाइल्डहुड के जो एक नीचे से जो ऊपर आते हैं लोग या जो गरीब तबके से आए हुए होते हैं, वो लोगों की या वो चाइल्डहुड की मेकिंग हो चुकी होती है वो लोगों की, और वो स्टार बनने से बहुत पहले ही वो स्टार होते हैं अंदर। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो बाद में देखती है, परंतु जो गरीबी तबके से आए हुए लोग होते हैं वो होते हैं कहीं अंदर पहले ही स्टार। तो वो एक फिल्म में तो मुझे नहीं लगता है कि वो कवर कर पाएंगे। दे विल हैव टू गो थ्रू, पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी रंगीला अजय लग रही है बायोपिक और ये सब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अभी वो डिस्कस करूँ। ओके, काफ़ी सारी बायोपिक्स अभी आ रही हैं फिलहाल में, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मतलब मनमोहन सिंह जी की छवि खराब की जा रही है उस फिल्म में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पॉलिटिकल डिस्कस करता नहीं हूँ जिस वक्त से मैं निकला हूँ, ताकि ये नहीं है कि मेरा उसके मतलब विषय में मेरी रुचि ख़त्म हो गई है, परंतु मैं उसे डिस्कस करूँगा तो लोगों को लगने लगेगा कि फिर इलेक्शन आ रही है, ये कहीं वही तो नहीं देख रहा है, इसका झुकाव तो नहीं है कहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है आंखें या दृष्टियाँ उनकी लगी हुई होती है कि आपकी मतलब कि माइक टेस्टिंग कहते हैं ना, जैसे हेलो, तो बिना बात के बहुत लोग फूंक मार रहे होते हैं जिस वक्त ये माहौल आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो डिस्कस ही करूँ, आई एम अवॉइडिंग इट, सॉरी। मैं ऐसे यूजुअली नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग उस तरफ देखें कि गोविंदा एज अ पॉलिटिकल हीरो। सॉरी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर निकल गया तो मुझे लगता है ये दो वो निकल गए हैं अभी टाइम, उसे बाहर निकलें उससे आप कृपया, क्योंकि ये फिल्म लाइन का ये दौर रहा है, जो गया उसमें पॉलिटिक्स में फिर 10 साल उसे काम नहीं मिला, और जो बहुत ही कमाल थे वो लोग 15 साल नहीं मिला वो लोग में मैं हूँ। ओके सर, इसी के साथ में सर काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में हमने आपको देखा है शुरू से लेके अब तक, और अब भी आपकी आने वाली फिल्म में भी हम आपको देख रहे हैं डबल रोल में। ऐसा कौन सा किरदार है सर जो आप अब भी प्ले करना चाहते हैं और जो अभी तक आपको मौका ना मिला उस किरदार को प्ले करने का? देखिए, अब जो लोगों के पास फिल्में बनाने की और उन्हें पेश करने की सुविधा है, और ऐसे लोगों के सामने आइडिया डिस्कस करना तो महापाप है और वो मीडिया के साथ थ्रू करें तो मतलब कि एकदम मतलब समझिए कि सेकंड डे आप वो देख रहे होंगे तो जो है दिल में वो सरप्राइज़ की तरह आए, तो हम लोग जैसे के लिए जो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत साल बाद आई एम सो थैंकफुल टू पहलाजी, टू आई फील सो थैंकफुल टू पहलाजी, टू नारी हीरा साहब, कि आप लोग के माध्यम से पुनः मैं किसी न किसी तरह से आ गया फिर सोसाइटी में। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे सोसाइटी से निकाल दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुनः वापसी है ये सुखद रहे, और पॉलिटिक्स का इसमें दूर दूर तक कहीं मतलब कि समझिए मैं क्या कह रहा हूँ डिस्कस ही ना हो, और जो काम मिला है वो काम करें, और जैसे शुरू में किया करता था मैं वही माहौल रहे। उतनी ज़्यादा फिल्में तो नहीं करूँगा, होंगी भी नहीं अभी ऐसा दौर भी नहीं है, परंतु जो काम मिले बहुत अच्छे से करके निकले। जैसे वन शेड्यूल ये फिल्म तैयार हुई है, इससे पहले वन शेड्यूल मैंने जो फिल्म की थी वो तैयार हुई थी, परंतु मेरे साथ ये दुखद रहा है कि जहाँ जहाँ मैं टाइम पे आया हूँ या वन शेड्यूल फिल्में आई हैं वो कहीं डिस्कस नहीं हुई हैं।
आप कृपया लिखिएगा कि मैं समय पे आता था, कृपया क्योंकि बदनामी करने में इतने पैसे लोगों ने खर्चे किए हैं, और कि अब जो पुनः जो वापसी हुई है सोसाइटी में, तो इसमें उसकी तकलीफ ना आए, किसी तरह की सोशल तकलीफ ना आए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम हमेशा देर से आने की तो बात नहीं, मेरे साथ रहा ही है, ताकि जो टाइम पे आए, तो तुमने पूरी टाइम हाँ पे सर, सवाल ही उठता है, ये तो साथ अपने साथ ही रख लेते हैं मुझे ना। जी, आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए हुए हैं, पर आपको नहीं लगता कि आप उस इमेज में स्टक हो गई कि उसी तरह की फिल्में आपके पास आ रही हैं? जी, मुझे शुरू में लग रहा था ऐसा। आदरणीय दिलीप साहब जी के साथ मैंने फिल्म की थी इज़्ज़तदार। उन्होंने उसके दरमियान मुझसे कहा कि गोविंद, तुम ये जो हेल्थ की मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी, जिस वक्त वो नई नई फिल्में चल रही थी, मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, एक्शन टाइप सिनेमा, तो उन्होंने कहा कि तुम लाइट सिनेमा करो, और वो मुझे सूट कर गया, और आई स्टार्टेड गिविंग हिट्स एंड मुझे ऐसा लगा कि ये नया दौर चल पड़ा है, और इस नए दौर के साथ रिलीफ अलग है, तकलीफ़ नहीं है, काम ऐसे हो जाता है, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, परंतु लोग पैसे दे रहे हैं, और कृपया दिया करें। तो हंसी मजाक में निकल जाता था काम। तो जो लोगों को बहुत टफ लग रहा था, या लग रहा था कि बहुत हार्ड वर्क है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं हो। तो वो जो कहते हैं कि आंवले का खाया और बुजुर्ग का कहा, कभी गलत नहीं होता है, तो वही हुआ। मैं काफ़ी वन आफ्टर मैंने 14-15 साल हिट फिल्में दी, तो उससे हिस्ट्री हो गई। ये हिस्ट्री नहीं होती अगर मैं उनकी बात नहीं मानता था। सो थैंकफुल टू। उसके बाद जो है, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपकी बात का, कि जो हार्ड वर्क आपने जो उस टाइम नहीं किया, हंसते खेलते किए, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत हार्ड वर्क किया। लेकिन एक ही खाली आपकी जो ना बात रही कि पहले भी नई हीरोइन के साथ, नीलम के साथ काम किया आपने एक फिल्म में, दूसरे में दिव्या भारती के साथ किया, तीसरी ऋतु शुक्री के साथ किया, अब मिशिका और दो अलग लड़के, दो नई लड़कियाँ। तो ये आपका दौर जो है ये खाली चालू है, लाइट ये तो चलते रहना चाहिए। आई थिंक ये तो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना कि फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं कई वर्ष तक, आज तक तो नहीं, परंतु कई वर्ष चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लकी कि लोग फ्रेंड्स जाके ढूंढा करते हैं, देखा करते हैं, समझा करते हैं। इसमें फ्रेंड्स, ये लफ्ज़ जो है, इसकी रिक्वायरमेंट का पहले तो समय नहीं मिलता, फिर समय मिल जाता है तो मैंने 2 सितारे कभी देखे आसमान में जुड़े हुए, कभी देखे नहीं, और जल्दी से होते नहीं हैं, और उनके बीच अगर विवाह हो गया हो तो आप देख लें और वो नज़र आ जाए। परंतु एज एन आर्टिस्ट दिल में वो भाव रहे कि ये पूरी फिल्म लाइन जो है कि एक घर परिवार है, एक पूरा परिवार है, ये पूरी फिल्म लाइन वो थ्रू आउट रहा करता है। तो फ्रेंड जो है उसके लिए फीका लफ्ज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स उस हद में शायद ही मुझे लगता है नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड एक घर परिवार आपको इस घर में आके सदस्यता मिल जाए, ये इजी नहीं है। बहुत ही कमाल की जगह है ये फिल्म लाइन, और यहाँ जो फ्रेंड्स ढूंढते हैं या शाम में उनको अपनी इवनिंग्स जो है पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, मिला करते हैं, ये कभी मेरा दौर रहा नहीं। मैं इतनी ज़्यादा तभी फिल्में की थी। अब जो है आज से ये समझ लीजिए कि ये शुरू हो गया फिर से पुनः, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टार्ट है। इस सोसाइटी मैगज़ीन से समझिए कि मैं आपको नज़र आऊँगा ज़्यादातर पार्टियों और फंक्शन में और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि जिस समय ये मैं नया फिल्मों में आया, समय ही नहीं होता था और ऐसे कभी दोस्ती भी नहीं हुई, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होगा जो आप कह रहे हैं। So what are your next projects? मैंने 2 फिल्में अभी सब्जेक्ट सुन के उनका फाइनल कर दिया है, पर आई डोंट वांट टू अनाउंस नाउ, अभी नहीं करूँगा अनाउंस। Last 2 questions. Are you upset with David Dhawan not working with you anymore? अपनी अपनी सोच होती है, मैं किसी के सोच के ऊपर
हकदार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त वो नए आए मैं उस वक्त काफ़ी फिल्में कर रहा था और उसके बावजूद हम लोग काम किए और इतनी सारी हिट फिल्में जिस वक्त हम दे रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अस, वो सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, वो पूरी टीम के पीछे किसी न किसी दैवी शक्ति कह लीजिए या किसी न किसी डिवाइन फोर्स का हाथ होता है। एंड समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जेलिंग, इट्स नॉट वर्किंग, सो देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स फॉर नोबडी, इट्स अ टाइम एंड टाइम फैक्टर में क्योंकि लोग सवाल पूछने लगते हैं तो जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, परंतु मैं ऐसे किसी के दिल में खराबी लगे ऐसे सवाल जवाब मैं करता नहीं हूँ आगे से। एक समय ऐसा आया था कि जैसे ये कह रहे थे कि आपको बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप उस डिवाइन फोर्स के टच में आ जाते हैं और आप ये समझते हैं कि जो वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन टू अस एंड ही इज़ गिविंग अस, इट्स एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद नोबडी आई हैव। ओके मिशिका, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के सामने काम करने का, कराची के सामने काम करने का? Yeah, firstly I would like to thank Mr. Nari Hira and would like to thank Mr. Palash Nilani that he had given me a debut film opposite Govinda ji. So that was a big thing for me and of course Govinda ji के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा because he is a fantastic actor भी नहीं है वो, in a person also he is mind blowing, off screen on screen he is superb person. लाइक ये जैसे मेरी पहली फिल्म है तो अब ये आगे और जो भी करूँगी बट इनके साथ कह रही हैं पर मुझे लगा नहीं फिल्म में ये मैं इन लोगों से यही सवाल पूछ रहा था, खाना खा के आए हो क्या, कि कहीं मुझे स्क्रीन पे ना खा जाएं कहीं। दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड आज जो यंगस्टर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि इतने हार्ड वर्किंग, इतने फिट, इतना एंड दे आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड एंड दैट इज़ देयर इन देयर वर्क। आई फील वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरी तारीफ रह गई थी, मुझे तुम नीचे उतर के पैसे दे देना। बट क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही मेड अस सो कंफर्टेबल ऑन सेट, यू नो, ऑन कैमरा कि चलो ऐसे करते वैसे। ही वाज लाइक, यू नो, वेरी गुड टू ऑल ऑफ अस। ओके मिशिका, कहीं ना कहीं आप खुद को लकी मानती हैं कि मतलब पहली फिल्म मिली वो भी गोविंदा जी के साथ में? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। पहलाज जी के साथ, गोविंदा जी के साथ, शक्ति कपूर जी के साथ। यस, बीइंग अ न्यू कमर, लाइक बीइंग हैविंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, I got this film. I'm like super lucky person. मेरा क्वेश्चन है पहला जी को। पहला जी, ये जो साल है 2018 was not a very happy year for the Bollywood. जितने बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इनकी सारी इनकी फिल्में आई, फिल्में इतनी अच्छी नहीं चली। फ्लॉप। इन शॉर्ट, ओके, यस। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा जी का एक, जब हम चाहते हैं कि फिल्म देखने जाते हैं तो गोविंदा जी को हम देखते हैं कॉमेडी और डांस, एक परफॉर्मेंस उनका एक दिमाग में उनके चलते हैं। सो टुडेज टाइम जो यंगस्टर्स है और जो फिल्में आ रही है, एक है फिल्में जो जिनकी स्क्रिप्ट अच्छी है वो चलती है, और दूसरी ये फिल्में हैं जिनमें सॉन्ग्स और डांस अच्छा है वो भी चलती है। आई मीन प्रेजेंट वन मूवी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जो आज रिलीज हुई है उसमें अगर आप देखेंगे रोहित शेट्टी की जो मूवी आ रही है, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर, जिसके अंदर गाने भी हैं और गाने जो पुराने गाने को उसको उन्होंने ऑप्ट करके चलाई है। मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे गोविंदा जी है, गोविंदा जी की एक इमेज है कि जो आजकल के नए जो है स्टार्स जो आ रहे हैं, एक्टर्स जो यूथ है, वो उनकी स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे वरुण धवन है, वरुण धवन को हम जब देखते हैं तो वी फील दैट गोविंदा। ओके, सो वेयर डू यू सी दैट दिस मूवी व्हिच यू आर गोइंग टू रिलीज ऑन 11th of Jan, डू वी सी द सेम कंटेंट? देखिए, सबसे पहले ये बताऊंगा, जो आपने जो शुरू से कहा कि ये इसकी नहीं चली, उनकी नहीं चली, उनके बारे में तो कहूँगा नहीं। हमेशा ये न्यूट्रल का लॉ है, एक जाएगा, एक ऊपर आएगा तो एक दूसरा नीचे आएगा। तो हमेशा इस तरह जब जो जाता है उसकी जगह कोई ले लेता है, और कोई जाता है तो उसकी वापस वही जगह ले लेता है। ये हमेशा इंडस्ट्री में चलता ही है। और कब तक कौन चल सकता है और चला सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आज प्रपोजल बन रहे हैं, एक्टर्स को लेके बन रहे हैं, कहानी को लेके नहीं बन रहे हैं। इसलिए आज हमारी
इंडियन वैल्यूज़, इंडियन थॉट्स, इंडियन म्यूज़िक जो है वो साउथ में आज भी, तेलुगु हो या तमिल हो, आज भी अलाइव है। इसलिए आज ज़्यादातर आप मोर देन हिंदी सिनेमा जितनी बनती है उससे ज़्यादा तेलुगु की डब फिल्में टेलीविज़न में चलती है और मोर कॉस्टली मूवी मतलब लेके चैनल वाले चलाते हैं, क्योंकि उनको इंडियन कंटेंट घर घर में पहुंचाना है। जिस तरह से घर घर मोदी पहुंच गए उस तरह से घर घर में डब फिल्में भी पहुंच गई है, जो हिंदी सिनेमा हम कम नहीं बनाते, जो चाहिए बनाते हैं। रोहित शेट्टी ने वही फिल्म बनाई जो तेलुगु में हिट थी, उसी हिट एवरेज थी, उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई करके और अच्छा करके एक हिंदी सिनेमा, जिस तरह से गोविंदा जी ने कहा कि मेरी फिल्में सिनेमा होती है जो कंप्लीट, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, हंसना हो, रोना हो, इमोशंस हो, एक्शन हो, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ द सिनेमा जिसमें सिचुएशनल गाना हो। आज गानों को हम ये तो ताना मार लेते हैं कि जो पहले म्यूज़िक होती थी, आज रेडियो में भी हमें, एफएम में भी जो हमें पुराने गाने ही सुनने को मिलते, नए गाने आए और कब गए, कब फिर आएंगे वो पता नहीं है। लेकिन आज भी 60 के, 70 के, 90 के मैक्सिमम गाने एफएम में चल रहे हैं, क्योंकि हमें पसंद है। कितने सालों के बाद भी चल रहे हैं, जिस तरह से गोविंदा चलते आ रहा है। और मैं 25 साल के बाद फिर गोविंदा को काम करने के लिए तरस कर रहा हूँ कि भैया जिस तरह से हिंदी सिनेमा का सरताज, जिसको मतलब जो ना आप क्राउन जो ना पहना सकते हैं, वो है गोविंदा। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो फिल्म मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट जो है बहुत चाहिए पब्लिक को, क्योंकि तरस रही है नोटबंदी से, जीएसटी से, तो उसके लिए सिनेमा जो है ना आती नहीं है, वो आई नहीं, इसलिए फिल्में नहीं चल रही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भूल गए। रोहित शेट्टी ने अपना मकाम जो है रखा है, एंड आई एम ग्लैड कि जाते जाते ज़ीरो से हीरो बनने के लिए रोहित शेट्टी और रणवीर जो है ना आ गए, और शुरुआत नए साल की गोविंदा करेंगे। आई एम सो ग्लैड। Thank you so much. Prahlad ji and Mishka, and thank you to all. Thank you. Thank you. गोविंदा जी